Hello students. Now in this video we will start off with the next part of the chapter, that is colligative properties. So till now we had focused on the vapor pressure, we had looked at what happens in the case of miscible liquids, हम लोगों ने Raoult's law पढ़ा था, azeotropic mixtures देखे थे. So बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी हुई है. So now we are going to start off with something called as colligative properties. So colligative properties क्या होता है? Basically these are the properties which depend on the number of solute particles relative to solvent. So solvent के respect में solute particles कितना है? Okay. So colligative properties are basically those properties which depend upon the number of solute particles which are present relative to the solvent particles, okay, or relative to the amount of solvent. Solvent के respect में solute कितना present है. You can see that they only depend upon the number of solute particles. These properties do not depend on the type of the solute. So whether आपका solute sugar है, यूरिया है, salt है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. As long as the number of particles are same, ये colligative properties same होती है दोनों solutions के लिए. Okay. अच्छा, it also does not depend whether the particles are small in size or the particles are large in size. ये जो colligative properties होती है, ये colligative properties ना solution की होती है. ओके तो ये जो colligative properties होती है solution की, they only depend upon the number of solute particles. They do not depend upon the type of solute, okay, or the size of the particles. Now इसके against there is something called as constitutional properties. Now when I say constitutional properties, ये constitutional properties क्या होती है? These are the properties which depend upon the nature of particles, nature of solute particles. ठीक है. So when I say constitutional properties depend upon the nature of solute particles. But colligative properties जो होती है, they do not depend upon the nature, they only depend upon the number of solute particles. बस number पे depend करता है. Okay. Now, so basically there are 4 colligative properties that we are going to study. The 4 colligative properties are, first one is relative lowering of vapor pressure. Okay. The second colligative property is elevation in boiling point. Elevation means increase, boiling point increase होना. The third colligative property is depression in freezing point. And the last one is osmotic pressure. Okay. So ये जो 4 colligative properties है, ये चारों colligative properties हम लोग पढ़ेंगे. Okay. Now, before we go on to the individual colligative property, let's try to understand what we mean by number of particles. Okay. So say for example, you have, let's say, 1 liter of water. Okay. And in this 1 liter of water, let's say 1 mole of sugar is dissolved. ना आप लोगों ने मोलारिटी नॉर्मेलिटी पढ़ा हुआ है, तो इस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन, लेट्स से सोल्यूशन का वॉल्यूम भी 1 लीटर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वॉल्यूम पे. सो मोलारिटी वुड बी इक्वल टू 1 मोलर. ओके. और आई कैन से 6.023 into 10 raised to 23 particles are present in 1 liter of H2O, right? 1 mole, when I say 1 mole of sugar means these many particles of sugar are present in 1 liter of H2O. Now when you compare this, आप जब इसको compare करते हो इसके साथ, okay, let's say you have 1 mole of salt, 1 mole of NaCl, common salt, okay,
present in 1 liter of water. Okay. Now, in this case, if you see how many particles you would have. Now, NaCl की property क्या होती है? When you put NaCl in water, ये NaCl जो होता है, it dissociates to produce Na plus and Cl minus. Now, you can see 1 mole of NaCl produces 1 mole of Na plus and 1 mole of Cl minus. So, you will have 6.023 into 10 raised to 23 ions of Na plus. And इस solution के अंदर again you will have 6.023 into 10 raised to 23 ions of Cl minus. तो Na plus के and Cl minus के ये इतने molecules है. तो इसके अंदर अब total number of particles कितने हो गए? Total number of particles would be equal to 12.046 into 10 raised to 23 particles in 1 liter of water. Now you can see that इन दोनों केसेस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डिफरेंट ना. यहाँ पे क्या हो रहा था कि शुगर जो है वो शुगर डिसोसिएट नहीं हो रहा था. ओके तो 1 मोल ऑफ शुगर पार्टिकल्स वेर एज इट इज, वो बस डिसॉल्व्ड स्टेट में जा रहे थे बट दे वेर नॉट डिसोसिएटिंग. बट कॉमन सॉल्ट के साथ क्या होता है कि बिकॉज कॉमन सॉल्ट डिसोसिएट्स द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इंक्रीजिंग नाउ. Now because total number of particles are increasing and हमने define colligative properties को ऐसे किया है ना, the properties which depend upon the number of solute particles, they do not depend upon the type, they only depend upon the number. So in दोनों cases में even though आप 1 mole of sugar add कर रहे हो और यहाँ पे 1 mole of salt add कर रहे हो, final number of particles are different in both cases. And because final number of particles are different in both cases, colligative properties की जो values होंगी वो अलग होंगी दोनों cases में. So हमें बस इतना ही हमारे लिए enough नहीं है कि कौन सा solute dissolve हो रहा है या कितना solute dissolve हो रहा है. It is also important for us to understand is whether that solute is dissociating or whether that solute is associating. ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है ना, वो भी आपको ensure करना होता है. जैसे for example, let's say you have 1 liter benzene and इस 1 liter benzene में okay what I am doing is I am adding 1 mole of acetic acid. Now जैसे ही आप acetic acid को benzene में ऐड करते हो क्या होता है पता है? एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स जो होता है दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म CH3COOH ट्वाइस, दैट इज ये डाइमर हुआ, इसको आप डाइमर कहते हो. सो 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 लार्ज मॉलिक्यूल. ओके सो इफ यू हैव 2 मोल्स ऑफ दिस, इवेंचुअली इसके अंदर यू विल ओनली हैव 1 मोल. सो अगर जो इफ यू हैव 1 मोल ऑफ दिस, स्टार्टिंग में अगर जो आपके पास 1 मोल है तो ये कितना बनेगा? 2 का 1 तो 1 का हाफ मोल. सो नाउ दिस विल हैव हाफ मोल ऑफ solute, that is 3.011 into 10 raised to 23 solute particles. ये आया आपको समझ में? सो ये जो नंबर ऑफ solute पार्टिकल्स है, ये नंबर ऑफ solute पार्टिकल्स कम हो गए इवन दो आपने 1 मोल ऐड किया था, बट एक्चुअल में solute पार्टिकल्स 1 मोल से कम हो गए क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा था, एसोसिएशन ऑफ solute पार्टिकल्स. सो दोनों चीजें पॉसिबल है. solute पार्टिकल्स एज इट इज भी रह सकते हैं जैसे शुगर के केस में होता है. solute पार्टिकल्स डिसोसिएट भी हो सकते हैं जैसे NaCl के केस में होता है. solute पार्टिकल्स एसोसिएट भी हो सकते हैं जैसे ये व्हेन यू पुट एसिटिक एसिड इन बेंजीन, तो उस केस में होता ही है. ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हैं, ये ऑल 3 केसेस दे आर हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट देम इन इक्वेशंस में, या जो भी आपका ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये जो 3 चीजें हो सकती है इनको आप कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे.
तो उसके लिए वी विल स्टडी समथिंग कॉल्ड एज वैन हॉफ फैक्टर. Now, Van't Hoff factor is very simple. It is defined as final number of particles divided by initial number of particles. Okay. So say example, you have मान लो one NaCl particle and it breaks up to produce one Na plus and one Cl minus. तो आपका Van't Hoff factor जो होगा it will be, finally you would have 1 plus 1 that is 2. Initially you had 1 ना, 1 of NaCl, तो आपका Van't Hoff फैक्टर जो होगा वो 2 होगा. नाउ व्हेन आई डू दिस, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि NaCl इज कंप्लीटली डिसोसिएटिंग. व्हेन यू हैव दिस साइन, जब रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, तो आई अज्यूम दैट इट इज कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट. और एक एग्जाम्पल करता है. से फॉर एग्जाम्पल you have, let's say, CaF2 and it forms Ca2 plus and 2F minus. आपका Van't Hoff factor क्या होगा? ये 1 है, this is 1 and this is 2. Finally, how many particles do you have? Finally, you have 1 plus 2, that is 3. Initially, you have 1, so this is 3. Again, I am assuming complete dissociation in this case. Okay. Now you might have that doubt कि मान लो complete dissociation नहीं होता, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो we will look at it. Okay, हम लोग ये देखेंगे. But at least आपको ये समझ में आ चुका है कि whenever dissociation takes place, Van't Hoff factor becomes more than 1. Okay. So I can write whenever solute particles dissociate, then Van't Hoff factor जो होता है, it will always be greater than 1. Similarly, if there is no dissociation or association, if there is no dissociation or association, then Van't Hoff factor is equal to 1. Okay. Now what will happen if you have association of molecules? अब association के केस में जैसे ये एसिटिक एसिड का एग्जांपल देता है, you have 2CH3COOH, it forms CH3COOH twice. Okay. Now in this case, if I have to find out Van't Hoff factor, finally you have one particle and initially you have two particles. So आपका Van't Hoff factor जो होगा, that will be equal to 1/2. Okay. So this 1/2 is less than 1. क्या आया समझ में आपको? So Van't Hoff factor जो होता है, Van't Hoff factor can either be greater than 1 when dissociation takes place. It can be equal to 1 when there is no dissociation or association. It can be less than 1 for when or for association of solute particles. When there is association of solute particles. ठीक है? So I hope this is clear to you. अब हम लोग वो देखेंगे कि Van't Hoff factor अलग अलग केसेस में when the degree of, what do you say, when 100% dissociation does not take place, तो उस केस में आप Van't Hoff factor कैसे निकालोगे? Okay. So we will start off with relationship between Van't Hoff factor and degree of dissociation. Okay. So एक solute assume करते हैं, that is AXBY. Okay. Now AXBY ये 100% dissociate नहीं हो रहा है, so it will form X ions of A plus Y ions of B. अगर जो आपको इन पे चार्जेस डालने तो आप ऐसे कर सकते हो, प्लस वाई माइनस एक्स, तो टोटल चार्ज आपका कितना हो जाएगा? प्लस एक्स वाई, यहाँ पे माइनस एक्स वाई, तो आपका ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा. ओके. नाउ लेट्स से इनिशियली
आपको ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करनी है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करने के लिए इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू स्टार्ट ऑफ विथ 1 मोल ऑफ दिस, सो यू हैव नथिंग एंड नथिंग। ओके, मान लो अल्फा रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे प्लस एक्स अल्फा बनेगा, यहाँ पे प्लस वाई अल्फा बनेगा। फाइनली व्हाट आई विल हैव इज 1 माइनस अल्फा, दिस इज एक्स अल्फा, दिस इज वाई अल्फा। ओके, ना अगर जो मुझे वैन टॉप फैक्टर निकालना है तो दिस इज फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, राइट, दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्योंकि ये भी कुछ बच रहा है, ये फॉर्म हो रहा है एंड ये फॉर्म हो रहा है, एंड डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 1। तो आपका ये जो वैन टॉप फैक्टर होगा, दिस वैन टॉप फैक्टर वुड बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 टाइम्स अल्फा। तो यहाँ से आप अल्फा ऐसे भी निकाल सकते हो, आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, सो दिस अल्फा इज बेसिकली योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके फाइन। अब अगर जो आपको मान लो वैन टॉप फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, ओके, लेट्स से यू वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड लेट्स कॉल इट एज बीटा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ओके, सो इन दिस केस आई कैन राइट इट दिस वे। कैसे सॉल्व करोगे इसको? सो मान लो यू हैव अ मॉलिक्यूल ए, सो एन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म ए एन। ओके, इसी को तो एसोसिएशन कहा जाता है कि एन मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म वन लार्ज मॉलिक्यूल, दैट इज ए एन। ओके, ना अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? So let's say initially वापस I will assume you have one of this. Now you can see that n molecules combine to form one. So when you have one, तो ये initially कुछ नहीं, हम जो ये रिएक्ट करता है माइनस बीटा, तो ये कितना बनेगा? प्लस बीटा बाय एन ना। अब जो भी है इसको आप n को n से डिवाइड करो तो यू गेट 1। सो अगर जो b रिएक्ट करे तो b को n से डिवाइड करो। सो फाइनली व्हाट यू वुड हैव इज, इफ यू सी ओवर हियर, फाइनली यू विल हैव 1 माइनस बीटा एंड दिस विल बी बीटा बाय n। वापस वैन टॉप फैक्टर चाहिए तो n फाइनल अपॉन n इनिशियल। फाइनली यू हैव दिस प्लस दिस, 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाय n divided by initial, that is equal to 1. So I can write this as I is equal to 1 minus beta 1 minus 1 by n. Okay, now you can see that here 1 by n will be smaller than 1. Okay, now so आपका ये जो टर्म है दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर, सो 1 माइनस पॉजिटिव नंबर विल बी लेस देन 1। सो ये आपका जो वैन टॉप फैक्टर है, दिस वैन टॉप फैक्टर वुड बी लेस देन 1। सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस इन दिस केस, 1 माइनस आई इज इक्वल टू बीटा इंटू 1 माइनस 1 बाय एन। ओके, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर दिस, अगर जो आपको ये समझ में आया है कि हमने ये कैसे डिराइव किया है, दैट इज गुड इनफ फॉर यू। ओके, ठीक है, चलो। सो एटलीस्ट आपको अब ये समझ में आया कि वैन टॉप फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या रिलेशनशिप होती है। ओके, अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चंस के अंदर ना आपको वैन टॉप फैक्टर के बारे में कुछ दिया होगा एंड आपको इवेंचुअली ये फाइंड आउट करना होगा व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। नाउ इफ यू लुक एट दिस रिएक्शन और इसके ऊपर वाला रिएक्शन, ओके, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? सो जैसे इस केस में अगर जो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज AN, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट इज A raised to n. ओके,
ना मान लो अगर जो आपको वैंट ऑफ फैक्टर पता हो तो वैंट ऑफ फैक्टर के बेसिस पे आप बीटा कैलकुलेट कर सकते हो, एंड वंस यू नो बीटास आप ये वैल्यूज कैलकुलेट करो तो आप डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। इसी लॉजिक से बाय यूजिंग द सेम लॉजिक यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। आपको अगर जो एक बार अल्फा मिल जाता है यू कैन कैलकुलेट दीज नंबर्स, एंड फिर k की वैल्यू क्या होगी, a रेज टू x इंटू b रेज टू y डिवाइडेड बाय ax by। ओके, इज दिस फाइन? ठीक है। सो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, सो आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is directly proportional to number of particles. Okay, and number of particles is directly proportional to Van't Hoff factor. आपका Van't Hoff factor जितना ज्यादा होगा value of colligative property उतनी ज्यादा होगी। So if I have to give you an example, let's say you have 1 mole of NaCl. Okay, अच्छा या हम लोग मोलारिटी के टर्म्स में बात करते हैं, 1 मोलार NaCl, 1 मोलार MgCl2, 1 मोलार Al2SO4 thrice, and let's say you have 1 molar K2FeCN6, K3FeCN6. Okay, now in this case NaCl dissociate हो गया आपको दो पार्टिकल्स। हम लोग हर एक केस में मान रहे there is 100% dissociation. So if there is 100% dissociation, NaCl dissociate होके it will give you 2 particles. तो आप सीधा Van't Hoff factor लिख सकते हो for NaCl it is equal to 2. So I am assuming 100% dissociation. MgCl2, 1 magnesium plus 2 chlorine, total is 3. So Van't Hoff factor would be 3. Al2SO4 thrice, so 2 aluminium, 3 sulfate ions, Van't Hoff factor would be 5. 3 potassium, and ये एक पूरा बड़ा आयन होता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब आप ये पढ़ोगे। So this is 1 large ion, Van't Hoff factor is 4. ठीक है। So if you look at these examples, what you would find is कि in this case because your Van't Hoff factor is maximum, तो नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा यहाँ पे होंगे एंड नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा यहाँ पे होंगे, तो इसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। एंड NaCl के केस में, इन चारों के कंपैरिजन में NaCl वाले केस में वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वुड बी मिनिमम। सो इवन दो सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, 1 मोलार 1 मोलार 1 मोलार 1 मोलार, बट डिसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे फर्क पड़ता है, एंड बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होता है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाती है। इज दिस फाइन? सो वी विल स्टॉप ओवर हियर। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल टॉक अबाउट और वी विल डिस्कस डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी है उनको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।